एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 8 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हम लक्ष्मीकांत से डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020 स्टार्ट हो चुका है और ये अनअकैडमी में स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप सबको एनरोल करना है तो आप तुरंत एनरोल कर सकते हैं। और स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल्स भी हो चुकी है स्टार्ट 5th September 2020 and there are 400 plus free live classes those who want to join. So Unacademy UPSC Championship 2.0 has already started and all India free mock test series are provided by Unacademy and UPSC CSE Prelims 2020 to 21 paper GS1, and you will also get a chance to meet UPSC CSE 2019 toppers with top Unacademy educators and Unacademy subscription scholarship also. And it will be held on 30th August, 6th September, 13th September, 20th September and 27th September. So don't waste your time and enroll now for Unacademy UPSC Championship. So as we know that we have our exams next month, so if you want to complete your preparation for UPSC CSE 2020, you can start with Unacademy as soon as possible. And this one subscription has unlimited benefits, like you can learn from home, you'll have unlimited access to all courses, you have top educators on one platform, you have full syllabus coverage, regular doubt clearing session, live test series, study material, answer writing and mentorship and guidance also. So basically UPSC CSE complete preparation batch courses has started already on 7th September 2020. So we have 3 different batches. The first batch is bilingual batch, in which you have Hindi and English both, and you will be given instruction in both the languages. And the second we have in Hindi, and the third we have in English. So if you subscribe now, you will get 10% extra off, and you just need to apply this code SIMPLEYT. So you'll get daily current affairs test series for free, and it will start on 7:30 p.m. 20 question 20 minutes, and it will be for 40 marks along with the test analysis. So if you really like our video, then you can join on YouTube, Telegram, Facebook. So let's start with directive principles of state policy. So basically the directive principle of state policy are enumerated in part 4 from articles 36 to 31, and we have borrowed the directive principles from the Irish Constitution of 1937, which had copied it from the Spanish Constitution. So B.R. Ambedkar clearly described this as the noble features of the Indian Constitution, because the directive principle, along with the fundamental rights, they contain the philosophy of the Constitution and the soul of the Constitution. Even Granville Austin said that the directive principles and the fundamental right are basically conscious of the Constitution. So basically now let's start with the features. The first feature is that the directive principle of state policy, basically they denote the ideals that the state should keep in mind before formulating any policies and enacting any laws. So these are basically the instructions and recommendation given to them, to the state, in legislative, executive and administrative manners. So directive principle also resemble the instrument of instruction, basically enumerated in the Government of India Act in 1935. In other words, we can also say that B.R. Ambedkar said that the directive principle are like the instrument of instruction, which are issued to the Governor General and to the governors of colonies of India by the British government under the Government of India Act of 1935. So directive principle also constitute a very comprehensive economic, social and political program for a modern democratic state. So basically their aim is to realize the high ideals of justice, liberty, equality and fraternity as outlined in our preamble that we had discussed in our previous slides.
and it basically tells us about the concept of welfare state and not that of a police state which existed during the colonial era. And we can also say that these rights are non-justable in nature, and they are not legally enforceable by the courts for their violation. So the directive principles are non-justable in nature help the court in examining and determining the constitutional validity of a law. So let us start with the next. So these are in the part 4. We have these directive principle of state policies. We have application to principle contained in this part. State to secure a social order for promotion of welfare. Certain principle of policy should be followed by the state. We have equal justice and free legal aid. Organization of village panchayats, right to work, to education and to public assistance. Then provision for just and humane conditions of work and maternity relief, living wage, participation of workers in the uniform civil code under Article 44. Then we have provision for early childhood care and education to children below age of 6 years. Then we have promotion of educational and economic interests of scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections of a society. Then we have given protection and improvement of environment, safeguarding of forest and wildlife. We have protection of monuments, places and objectives of national importance. Then we have separation of judiciary from the executive. Then we have promotion of internal peace and security. So let's start with the classification of directive principles. So we have basically classified it into 3 broad categories. The first is a socialist, second is Gandhian, and the third is liberal intellectual. So let's start with the socialist. So basically these principles reflect the ideas of socialism, and they lay down the framework of the democratic socialist state, which aims to provide social and economic justice and set the path towards the welfare of the state. So we can see basically the socialist principle, they want to promote the welfare of people. उनका सबसे पहला मोटिव क्या है कि लोगों को कितना और अच्छा कर सकते हैं हम, और ये कैसे आएगा, ये हम आएगा कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल को पॉलिटिकल राइट्स के थ्रू वेलफेयर हो सकता है लोगों का, और इससे क्या होगा, हमारे समाज में जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो और कम होंगी, जैसे इनकम, स्टेटस और फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटी में. उसके बाद करते हैं जो सिक्योर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब सबको है कि अपना एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड चूज करने का. देन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज भी होगा कम्युनिटी में. देन प्रिवेंशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगा, मतलब कुछ लोगों के पास सारी वेल्थ नहीं होगी कंट्री की, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और बाकी सब. उसके बाद हम ये भी हम देखते हैं कि हम इससे हम प्रमोट कर सकते हैं इक्वल जस्टिस, और हम प्रोवाइड कर सकते हैं फ्री एंड लीगल एड टू द पुअर अंडर आर्टिकल 39A. उसके बाद हम राइट टू वर्क विद सिक्योर एजुकेशन, जो हमने पिछले वाले उसमें बात करी थी. उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें स्टेप्स पे लिए गए कि जो पार्टिसिपेशन हो वर्कर्स की मैनेजमेंट में, इंडस्ट्री में, जो 44A आर्टिकल में मेंशन है. और उसके बाद इनका टारगेट ये भी है कि ये बेसिकली लोगों की वेज, जो लिविंग वेजेस मतलब जो डेली कमाते हैं, वो थोड़ा इम्प्रूव करे, और इनका जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है जो बच्चों को मिलता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इम्प्रूव हो. उसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ भी इम्प्रूव होनी चाहिए. उसके बाद हम बेसिकली बात करते हैं अपने गांधीयन प्रिंसिपल्स के लिए. तो गांधीयन जो प्रिंसिपल वो बेसिकली किस पे बेस्ड है, वो है जो गांधी की आइडियोलॉजी है. अब ये आइडियोलॉजी क्या बताती है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है जो प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है जो गांधी ने दिया था ड्यूरिंग द नेशनल movement. So in order to fulfill the dreams of Gandhi, some of the ideas are actually mentioned in directive principle. The first one is to organize the village panchayat and endow them with necessary power and authority. मतलब village पंचायत होनी चाहिए और उनको powers और authority होने चाहिए. उसके बाद ताकि वो एक function बने और self government. उसके बाद हमें promote करना चाहिए cottage industries हैं जो इंडिविजुअल पे है या फिर कॉर्पोरेशन बेसिस पे जो रूरल में है. उसके बाद वॉलंटरी फॉर्मेशन होनी चाहिए, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्रोल,
प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का होना चाहिए, तो आर्टिकल नंबर 43 में मेंशन है। उसके बाद हम ये प्रमोट करना चाहते हैं कि एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट होने चाहिए, जो किसके लिए, SC ST और वीकर सेक्शन के लिए, ताकि हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सके कोई भी सोशल इनजस्टिस हो हमारी सोसाइटी में या फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन। तो उसके बाद हमने ये भी प्रोहिबिट करा है कि जो कंजम्पशन ऑफ ड्रिंक्स और ड्रग्स है। उसके बाद यहाँ पे गांधी जी ने ये भी सजेस्ट करा है कि हमें प्रोहिबिट करना है द स्लॉटर ऑफ, मतलब हमें गायों को, काव्स को और अदर मिल्क और कैटल को भी नहीं मारना है और हमें इनके इम्प्रूव करने हैं ब्रीड्स। उसके बाद हम बात करते हैं अपने लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में। सो ये बेसिकली आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म की बात करते हैं, जिसमें ये डायरेक्ट करते हैं स्टेट को कि ये सारे सिटीजन to secure for all citizens a uniform civil code throughout the country, to provide a early childhood care and education for all country, और ऑर्गेनाइज करना है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स ताकि और इम्प्रूव कर सके। उसके बाद हमें प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना है एनवायरनमेंट और सेफ गार्ड करना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमें अपने मोन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस, और हमें बेसिकली सेपरेट करना है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से फॉर पब्लिक सर्विसेज। उसके बाद हम आते हैं न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सो 42nd अमेंडमेंट में हमने बेसिकली ऐड जो 1976 में हुआ था, बेसिकली 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड हुए थे। जो पहला है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल नंबर 39। उसके बाद टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, आर्टिकल नंबर 39। Then we come on to take steps to secure the participation of workers in the management of industry, article number 43A. Then we come on to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife, जो हमने पिछले उसमें बात करी थी पिछले liberal intellectual principles में भी, जो आर्टिकल नंबर 48A है। So basically जो 44 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ऑफ 1978 में, उसमें एक और ऐड करा गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल कि जो स्टेट को मिनिमाइज करने इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, स्टेटस और फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी। इसका 86 अमेंडमेंट में हमने ये मेंशन करा था जो 2002 में हुआ था कि बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन सब बच्चों को दी जाएगी अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। और उसके बाद हमने 97 अमेंडमेंट में हमने ये ऐड करा था कि relating to cooperative society, जिसमें it requires the state to promote voluntary formation and autonomous functioning and democratic control and professional management of cooperative society under article number 43B. अब हम अपना नेक्स्ट आते हैं, वो है sanction behind directive principles. So सर B.N. राव ने बेसिकली ये कहा है कि जो राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल है वो डिवाइडेड होनी चाहिए 2 कैटेगरी में, एक तो जस्टेबल में होनी चाहिए, नॉन जस्टेबल में होनी चाहिए, जो एक्सेप्ट करी थी किसने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने। सो बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टेबल इन नेचर है, तो वो हम तो उनने पार्ट 3 में इनकॉर्पोरेट करी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो नॉन जस्टेबल है वो पार्ट 4 में इनकॉर्पोरेट करी। सो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टेबल, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत क्लियर बोला कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं कि वो बहुत फंडामेंटल चीज़ है जो बहुत नेसेसरी है गवर्नेंस में हमारी कंट्री के लिए, और ये ड्यूटी है स्टेट की को अप्लाई करे इन प्रिंसिपल्स की ताकि लॉ मेकिंग में। सो ये इन प्रिंसिपल से और भी एक फ़ायदा है कि एक बेसिकली ये इम्पोज करते एक मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट अथॉरिटीज फॉर द एप्लीकेशन, बट द रियल फोर्स बिहाइंड देम इज पॉलिटिकल, दैट इज द पब्लिक ओपिनियन। देन वी कम ऑन टू दैट द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्चुअली क्यों चूज करा कि ये नॉन जस्टिबल होने चाहिए और लीगली इन्फोर्सेबल क्यों होने चाहिए। पहला रीज़न ये था कि हमारी कंट्री के पास इतने सफिशेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे ताकि कि वो इम्प्लीमेंट कर सके इतनी सारी पॉलिसीज़ को। उसके बाद ये है कि हमारी कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी है और बैकवर्डनेस थी कि हमें समझ नहीं आता कि हम किस वे में हम इम्प्लीमेंट करें अपनी पॉलिसीज़ को। उसके बाद जो न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट था विद इट्स मैनी प्री ऑक्यूपेशन माइट बी क्रश्ड
under the burden unless it was free to decide the order, the time, the place, and the mode of fulfilling them. So the constitution makers, therefore, taking a pragmatic view, refrained from giving teeth to these principles, and they believe that in an awakened public opinion rather than in a court procedures as the ultimate sanction for the fulfillment of the प्रिंसिपल्स. मतलब बाद में जब हमारी कंट्री को रियलाइज होगा कि ये जो बेसिक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, अगर ये इम्प्लीमेंट करनी हो तो ये लॉस के थ्रू इम्प्लीमेंट हो जाएगी. उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्रिटिसिज्म आया डायरेक्टिव प्रिंसिपल का. पहला तो क्रिटिसिज्म ये सब ने बोला कि बेसिकली कि कोई लीगल एनफोर्स नहीं है इसका. तो बेसिकली क्रिटिसाइज हुआ कि ये नॉन जस्टिबल जो है कि टी शाह ने बोला कि एक कि बेसिकली ये कंपेयर कर दिया गया चेक ऑन अ बैंक पेएबल ओनली व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द बैंक परमिट. बेसिकली जब परमिशन मिलेगी तब जाके ये एनफोर्सेबल है, वैसे ये एनफोर्सेबल नहीं है. उसके बाद हम द सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो हमने जो स्कॉलर्स ने हमें दी है वो है कि ये बहुत लॉजिकली अरेंज है, मतलब एक लॉजिकल मैनर में ये अरेंज नहीं है जो बेसिकली कंसिस्टेंट होनी चाहिए फिलॉसफी की. और उसके बाद ये बोला कि बहुत कंजर्वेटिव है. कंजर्वेटिव क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन उठता है कि हमारी 21st सेंचुरी में ये सूटेबल है ये चीज़ लॉ मेकिंग के लिए, और हो सकता है कि ये इंटायरली क्या हो जाए, ये मोल्डेड हो जाए, मतलब एक नई पॉलिसीज और ये थोड़ा आउटडेटेड हो जाए जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं. उसके बाद हम आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट. तो एक फेमस पर्सन ने जो है के सांथनाम ने पॉइंट करा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल से क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट होगा. जो होगा वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे होगा, बिटवीन स्टेट एंड सेंटर होगा, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होगा, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का होगा. तो इनका ये मतलब था कहने के लिए कि जो सेंटर होगा वो डायरेक्शंस देगा स्टेट को कि इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज, और अगर स्टेट नहीं मानेगा इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो वो जो सेंटर है वो डिसमिस कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को. अगला हम आते हैं कि क्या यूटिलिटी है, मतलब कैसे यूज कर सकते हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को. तो बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिक्लेयर दैट दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. और एल.एम. सिंघवी ने एक एमिनेंट जूरिस्ट एंड डिप्लोमेटिक कहा कि डायरेक्टिव्स आर द लाइफ ऑफ गिविंग प्रोविजंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन. दे कॉन्स्टिट्यूट द स्टफ of the constitution and philosophy of social justice. तो इसमें हम देखते हैं कि ये क्यों यूजफुल है हमारे लिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल. पहली चीज़ तो ये कि ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरह है और एक जनरल रिकमेंडेशन है जो सबको दी गई है, ऑल अथॉरिटीज़ को दी है, और ये रिमाइंड करते हैं कि हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो है न्यू सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. और उसके बाद ये एक्चुअली एक इट इज एक्चुअली सर्व्ड एज अ यूजफुल beacon lights to the court. They help the courts in exercising their powers of judicial review, that is the power to determine the constitutional validity of a law. उसके बाद ये फॉर्म करते हैं डोमिनेटिंग बैकग्राउंड में कि सारे स्टेट के क्या एक्शन होंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, और सारे कैसे गाइड करेंगे टू द कोर्ट इन सम रिस्पेक्ट्स. और ये हमें ये भी बताते हैं कि ये सबके लिए और सारे सिटीजन्स के लिए हैं ऑफ इंडिया. इसमें हमें क्या मिलेगा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी. तो अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसका ये भी रोल है कि बेसिकली ये एक स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी इन डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज इन पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्फीयर भी लाते हैं, और चेंजेस इन पार्टी इन पावर. They are also supplementary to the fundamental rights of the citizen, that they are intended to fill the vacuum. मतलब जो हमने पार्ट 3 में नहीं कवर करा वो पार्ट 4 में इकोनॉमिक और सोशल राइट्स में कवर हो जाता है. उसके बाद इस इम्प्लीमेंटेशन से एक फेवरेबल एटमोसफियर अगर बनेगा तो फुल एंड प्रॉपर एंजॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स होंगी सबके सारे सिटीजन्स के लिए. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हैज़ नो मीनिंग. उसके बाद ये बेसिकली एक कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में सबको बताएगा कि मतलब हम ये क्या क्या पॉलिसीज ओरिएंटेड होनी चाहिए किसके लिए. तो सबको एक आइडिया मिलेगा कि हमारी जो पॉलिसीज है हमारी कंट्री के लिए वो कैसे होंगी आगे जाके. अब हम जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करने वाले वो है बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ
फंडामेंटल राइट्स में डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो सबसे पहला केस जो हुआ था वो जो है वो है चंपक दोराई राजन केस, जो 1951 में हुआ था. तो सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल द फॉर्मर वुड प्रिवेल. It declared that directive principle has to conform to and run as subsidiary to fundamental principle. मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऊपर नहीं बल्कि उसके नीचे, उसके साथ वो साइड बाय साइड रन करेंगे. So declared, and but it also held that the fundamental rights could be amended by the parliament by enacting constitutional amendments. उसके बाद जो अगला केस हम देखते हैं वो है गोलकनाथ का केस, जो 1967 में है. अब जो गोलकनाथ का केस है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल जजमेंट पास किया, तो पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और एवरेज एनी फंडामेंटल राइट्स which are sacrosanct in nature. In other words, the court held that the fundamental rights cannot be amended for the implementation of the directive principles. और जो अगला और जो इसमें हम बात करते हैं, इसमें जो पार्लियामेंट रिएक्टेड, जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई तो पार्लियामेंट ने कैसे रिएक्ट करा. तो उन्हें 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में और 25th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और जो 24th अमेंडमेंट एक्ट ये बोलते है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि कोई भी फंडामेंटल राइट दे सकते हैं और ले सकते हैं, और वो कैसे करेंगे इनैक्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू. और उनने 25 अमेंडमेंट एक्ट में इंसर्ट करा था एक न्यू आर्टिकल 31C, जिसमें ये दो प्रोविजन कि नो लॉ विच सीज टू इम्प्लीमेंट द सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल 39B and C shall be void on the grounds of transvention of the fundamental rights conferred by the article number 14, 19 and 31. उसके बाद इन्हें कहा था कि no law containing a declaration for giving effect to such policy shall be questioned in any court on the ground that is does not give any effect to such policy. उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है. पहले तो ये फंडामेंटल राइट्स है वो है क्या है, नेगेटिव इन नेचर है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, पॉजिटिव नेचर. उसका मतलब स्टेट को करना. नेगेटिव में मतलब क्या होता है कि जो स्टेट को जो चीज़ नहीं करती. उसके बाद फंडामेंटल राइट्स में पता है जस्टिएबल है. उसके बाद जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो नॉन जस्टिएबल है कि वो एनफोर्सेबल नहीं है लीगली. उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करते हैं, वेयर एज जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करते हैं हमारी कंट्री में. और फंडामेंटल राइट्स के क्या है, लीगल सैंक्शंस हैं, और वेयर एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के क्या है, मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शन है. अब फंडामेंटल राइट्स ये प्रमोट करता है कि सब जो इंडिविजुअल है उसका वेलफेयर हो, और वो काफ़ी ज़्यादा पर्सनल और इंडिविजुअलिस्टिक है. वेराज जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखते हैं तो वो बेसिकली पूरे कम्युनिटी के वेलफेयर के बारे में सोचता है और पूरे सोशलिस्टिक पैटर्न के थ्रू. उसके बाद हम अगला केस आते हैं, वो है केशवानंद भारती केस इन 1973. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर करता है, जो हमने ऊपर जो सेकेंड हमने प्रोविजन पढ़ा था आर्टिकल 31C में, जो हमने करा था कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है ऑन द ग्राउंड ऑफ जो जुडिशियल रिव्यू है, जो एक बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का. और उसके बाद हेंस इट कैन नॉट बी टेकन. उसके बाद हम अगला जो केस आते हैं वो है मिनर्वा मिल्स केस. अब मिनर्वा मिल्स केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये बताया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फाउंडेड हुआ है किस बेडरॉक में, बैलेंस होगा बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और वो दोनों एक साथ चलेंगे. जो हम एक कमिटमेंट देते हैं कि हम किसके टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं, हम एक सोशल रेवोल्यूशन के टूवर्ड्स बढ़ेंगे अपनी कंट्री में, और वो एक 2 व्हील्स है एक चैरियट के लिए, और कोई एक कम नहीं है, दोनों क्या है, बराबर है. उसके बाद हम देखते हैं कि इन्हें इम्प्लीमेंटेशन कैसे करा गया, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का. वो है सबसे पहले जो प्लानिंग कमीशन है जो 1950 में एस्टैब्लिश हुई थी, उसमें 2005 में नीति आयोग के थ्रू उसको रिप्लेस करा गया था. अब ये एक न्यू बॉडी थी जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. उसके बाद जो है सब स्टेट्स ने जो पास करा, लैंड रिफॉर्म लॉज पास करा था ताकि हमारे चेंजेस हमारे एग्रीग्रेन सोसाइटी में. उसके बाद मिनिमम वेजेस एक्ट इन 1948 में, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट इन 1936,
में, और द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इन 1965 में, और काफ़ी सारे एक्ट आए पेमेंट के थ्रू। उसके बाद हमने ये भी इंक्लूड किया कि मटर्निटी बेनिफिट क्या एक्ट मिलेगा, उसका वजह से क्या बेनिफिट मिलेंगे वीमेन को इन 1961 में। और हमने ये भी कहा कि इक्वल रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए वीमेन को 1976 में, ताकि जो वुमेन है उनके हम इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सके जो वुमेन वर्कर्स के हैं। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी आया, ताकि हम अपने वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद एग्रीकल्चर को भी हमने काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज करा। हमने अपने जो टेक्नोलॉजी है जैसे एग्रीकल्चरल इनपुट, सीड्स, फर्टिलाइजर वगैरह, हमने मॉडर्न चीज़ें यूज़ करी थी अपने इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद हम आते हैं कि हमारा 3 टायर सिस्टम है, जैसे हम सबको पता है, जो गांधी का एक ड्रीम है कि एवरी विलेज एक रिपब्लिक है। और जो 73rd अमेंडमेंट में हम 1992 में हमने इनैक्ट करा था, ताकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाए और उसकी प्रोटेक्शन भी हो जाए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशंस दी थी 1990s के बाद जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में SCs, STs और बाकी जो वीकर सेक्शंस हैं, ताकि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि ये जो जितने भी रिसोर्सेज है यूज़ करने के लिए। उसके बाद जो स्टेट्स है उनने ये भी इनिशिएट करा था कि ओल्ड एज की जो पेंशन है वो भी देंगे वो। उसके बाद हमारी कंट्री ने जो पॉलिसी जो नेहरू की जो पॉलिसी थी वो भी फॉलो करी थी, वो थी नॉन अलाइनमेंट की, ताकि हम ये प्रमोट कर सकें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी। उसके बाद हम अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो डायरेक्टिव जो है आउटसाइड पार्ट 4 है। ये क्लेम्स करते हैं SCs एंड STs टू सर्विसेज। ये क्लेम करते हैं मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको भी कंसिडरेशन में लिया जाना चाहिए, और उनकी भी मेंटेनेंस और एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि इनकी अपॉइंटमेंट्स होती रहे सर्विसेज पे। उसके बाद हमने ये करा कि जो इंस्ट्रक्शन होगा वो मदर टंग में हो सकता है, कि एवरी स्टेट को जिसमें कंफर्टेबल हो वो प्राइमरी एजुकेशन में यूज़ होनी चाहिए इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। उसके बाद जो है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज की ड्यूटी है यूनियन की, कि वो स्प्रेड करें हिंदी लैंग्वेज को और उसे डेवलप करें एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन सबके लिए, elements of composite culture of our country. Thank you so much. If you really like my video, so please like and subscribe and comment. Thank you.